Namaskar. I am Professor Nandini Sahu, Vice Chancellor, Hindi University, West Bengal. We have introduced a YouTube lecture series, a very special lecture series on comparative world literatures in the Hindi University, West Bengal since January 2025 after I joined the position of the Vice Chancellor. In the process of the series, we have invited more than 35 scholars, researchers, senior professors, academicians, creative writers, critics, and theorists all over the world, and they have delivered lectures for our university under the umbrella term comparative world literatures, and they have taken their specific subjects like their own research, and then they have taken critical pedagogy from different world literatures, and then they have become an integral part of the Hindi University West Bengal special lecture series on comparative world literatures. Today, I am immensely happy that this lecture series has created ripples in Indian academia and outside. Many universities have approached us to utilize the lectures delivered by our experts as a part of their classroom teaching and research and theory classrooms, as far as their literary theory classes are concerned or comparative literature classes are concerned. And this is a milestone that within 6 months of the introduction of the lecture series, thousands and thousands of researchers and scholars have been closely associated with us, and we are editing a volume, Comparative World Literatures, where we have invited research papers from all the speakers who have already delivered lectures for us. Also, we have invited those scholars who are going to be a part of our lecture series, and they have shown enthusiasm to contribute their full-length papers to the edited volume Comparative World Literatures, which eventually we will use as a part of our coursework on comparative world literatures when we introduce the Department of Comparative World Literatures in Hindi University. Also, I am immensely happy to share with our scholars, our readers, and our enthusiasts that the internal faculty members of Hindi University have started contributing in a meaningful way to the pedagogy of comparative world literatures. They have started delivering lectures under the umbrella term comparative world literatures, and 2 or more internal faculty members of Hindi University have already delivered their lectures, and more number of faculty members have registered with the series, and they are discussing their research with me, and very soon, within a couple of weeks, we will complete the recordings of the internal faculty members of Hindi University who have also been critically a part of the comparative world literature series, like translation studies departments, then the Hindi department people, history and political science department people. How they can be a part of comparative world literatures is the question here, the point of concern here. Translation studies people can use comparative literature not just as a linguistic exercise but as a method of epistemic mediation. They allow ideas, concepts, and narratives from Hindi and other Indian languages and world languages to enter the global academic conversation while retaining their cultural and philosophical integrity. For history and political science departments, translated archives, oral histories, and political texts can be comparatively used and read to question the dominant narratives in the world, and also to rediscover the silenced texts, the silenced voices. Like I read somewhere that history is written by the winner,
Now, what happens to the history of the so called loser? Ethnomusicologists, historians, they take up the history of the so called loser as a part of their research. So, this is what our history department people are doing, and I am very happy to share that many of them have been highly published and they are working on ethnomusicology, on history and pedagogy of the historical texts, which are also a part of the comparative world literatures in a very intertextual and polyphonic way, in a very interdisciplinary, transdisciplinary, and multidisciplinary way. For history and political science people, translated archives and oral histories and political texts, they speak out for the people who are marginalized, who are the subaltern, who do not have a voice. And this makes comparative literature a methodology of resistance against epistemic colonialism, epistemic violence against the subaltern. And then, when it comes to languages for global theorization, through comparative literature frameworks, Hindi and other literature departments, they can be, they take it as a part of their history, their research and publication, and these researches can be used as models for a theoretical source in their own rights, producing indigenous concepts, aesthetic categories, and political critiques. Comparative readings of Hindi texts in our Hindi university, alongside the world literatures, they can help political science people explore cultural nationalism, which we are successfully doing, subaltern politics, and movements of resistance, while history can locate them in specific temporal and sociological and social contexts. And then, when it comes to reframing world literature from the global south, comparative literature enables the comparative world literature departments to challenge the canon by foregrounding, South dialogues and Hindi dialogues with African, Latin American, Southeast Asian texts instead of the usual North South pedagogy or North South dichotomy. We believe in inclusivity and flexibility, and through this comparative world literatures lecture series, we have been successfully doing it, and I am very happy to share here that not just external experts but the internal faculty members from Hindi, translation studies, history, and political science departments from our university have been substantially contributing. They have been delivering lectures. Comparative literature enables the world literatures to challenge the canons, and also how comparative literatures engage with political science to map these literary exchanges against patterns of decolonization, post colonial alliances, and transnational solidarity movements is the point of concern here. And our faculty members have been constantly discussing these ideas and ideologies with me, and they have been contributing to the lecture series through publications and through lectures, and we are sharing those YouTubes with you continuously. History can trace the deep structures of cultural memory, migration, labor through these comparative readings. And when it comes to memory studies or mnemoculture, through comparative world literature's pedagogy, we are also contributing to the narratives as archives of political and historical knowledge systems. Literary texts, when approached through comparative literature, become the alternative archives for history and political science, preserving the dissent, everyday resistance, and emotional registers that are absent in our state records. We are making the silenced voices speak. Through translation studies, we play a crucial role by making such living archives, by creating such living archives on dying languages, on dying cultural heritages, and we are making those available, and we are enabling the cross cultural research and pedagogy through this lecture series.
Hindi's vast corpus of novels, poetry, and folk literature becomes a living laboratory for these archival excavations. We are dealing with Hindi literature, Bengali literature, English literature, and all other Indian languages and literatures, and also world literatures through this particular very important series that has created ripples in Indian academia. Comparative literature has become a pedagogical common for us. In teaching, comparative literature offers an interdisciplinary classroom where translation studies, Hindi, world literatures, history, and political science they co-teach models like revolutions in literature, colonial encounters, memory and migration studies, and our students are learning how to read a poem or how to read a novel or how to read any text from history or public administration or political science by applying the comparative research methodology. We are very rich in research methodology classes in the Hindi University. In fact, our faculty members take very special classes on research methodology for our students, and those classes are extremely useful for the students, and they have given me the feedback about it. This fosters the 21st century research skills, critical multilingual reading, cross cultural analysis, and the ability to recognize literature as both aesthetic and political action. The personal is political, isn't it? So, in the Hindi University, the matters that we discuss as a part of our personal discourses through this comparative world literature series are also our political, academic, and social statements. We have created ripples, we have created a signature of our own, a brand of our own, brand Hindi University. Once again, I congratulate all the external speakers who have also contributed to our comparative world literatures lecture series and the internal faculty members who have started contributing to the series in a big way. Thank you. Namaskar. मैं डॉक्टर रेखा कुमारी त्रिपाठी, हिंदी विश्वविद्यालय की शिक्षिका, हिंदी अनुवाद विभाग की हिंदी से हूँ। हिंदी विश्वविद्यालय आदरणीय कुलपति प्रोफेसर नंदिनी साहू मैम को सादर नमस्कार करती हूँ कि उन्होंने मुझे तुलनात्मक विश्व साहित्य के लेक्चर सीरीज में अपने वक्तव्य रखने का अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ, इन्होंने ये अनमोल अवसर मुझे प्रदान किया। अपने वक्तव्य को रखने से पहले मैं एक प्राचीन भारतीय परंपरा का प्रार्थना है आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कि उपनिषद से लिया गया है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तुलना मानव की सहज प्रवृत्ति है। तुलनात्मक साहित्य में दो या कई चीजों के गुणों की समानता और असमानता दिखलाई गई हो, जिसमें किसी के साथ तुलना करते हुए विचार न किया गया हो, जैसे कबीर और नानक का तुलनात्मक अध्ययन। अध्ययन के बारे में स्पष्ट किया गया है, किसी विषय के सब अंगों या गूढ़ तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे देखना, समझना तथा पढ़ना, इन शब्दों को ज्ञात करने पर तुलना एवं सरल एवं व्यवहारिक अर्थ है किन्हीं दो वस्तुओं या व्यक्तियों का कतिपय समान गुणों के आधार पर पूर्णता जानने के लिए परीक्षण या तुलना करना। तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत किन्हीं दो समकालीन या विषमकालीन समान गुणात्मक प्रतीत होने वाले कृतियों का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन दो युगों, दो भाषाओं एवं दो व्यक्तियों का हो सकता है।
यह अध्ययन गंभीर, वैज्ञानिक, तटस्थ एवं निष्कर्ष मूलक होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि तुलनात्मक साहित्य की जो है शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई। हैंस जो थे पाश्चात्य विचारक, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा सुधार के दृष्टिकोण से विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों के विश्लेषणात्मक अध्ययन को तुलनात्मक शिक्षा कहा है। तुलनात्मक साहित्य की शुरुआत चार्ल्स ऑगस्टिन ने सेंट बेहुए के योगदान से तुलनात्मक साहित्य को अध्ययन के क्षेत्र के रूप में स्थापित किया था, जिन्होंने 1868 में एक सम्मेलन में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि इससे पहले 1840 में उन्होंने पहले ही तुलनात्मक साहित्य का इतिहास के बारे में बात की थी। इस विषय पर पहली विशेष पत्रिका क्लूज में यह प्रकाशित हुई है। तुलनात्मक साहित्य की अवधारणा को रखते हुए मैं पाश्चात्य विचारकों के मत को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हेनरी एच रेनमार्क ने तुलनात्मक साहित्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है। तुलनात्मक साहित्य एक राष्ट्र के साहित्य की परिधि से परे दूसरे राष्ट्रों के साहित्य के साथ तुलनात्मक अध्ययन है तथा यह अध्ययन कला, इतिहास, समाज विज्ञान, धर्मशास्त्र आदि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के आपसी संबंधों का भी अध्ययन है। उसके बाद विश्वकोशात्मक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तुलना के विषय में लिखा गया है कि तुलना किन्हीं दो वस्तुओं के समान गुणों एवं अंतरों का उद्घाटन या प्रस्तुतिकरण अथवा इन्हीं विशेषताओं का संयोजन है। तुलना कभी कभी आरंभ में संभावनापूर्ण लग सकती है, पर अंततः उससे कुछ भी सिद्ध नहीं हो सका, और यह भी होता है कि उपयुक्त परिभाषा तुलना प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तुलना में वस्तुओं का साम्य वैषम्य मिलना निश्चित नहीं मानती है। प्रसिद्ध विश्वकोशकार वेबस्टर ने तुलना के अर्थ और आश्रय को बहुत ही विश्वसनीय ढंग से स्पष्ट किया है। दो या दो से अधिक वस्तुओं के समान एवं असमान तत्वों को ज्ञान करने के लिए उन्हें साथ रखकर परिलक्षित करना, दो वस्तुओं की असमानता की मात्रा का पता लगाने के लिए भी तुलना की जाती है। दो वस्तुओं के साम्य वैषम्य को निष्पक्ष जांच के लिए तथा निष्कर्ष प्राप्ति के लिए भी तुलना की जाती है। रेने बेलेक पॉसनेट के अनुसार साहित्यिक विकास के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन ही निश्चय ही तुलनात्मक साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद क्लाइव स्टॉक के अनुसार तुलनात्मक साहित्य में विभिन्न भाषाओं में लिखित साहित्यों अथवा उसके संक्षिप्त घटकों एवं साहित्यिक तुलना होती है और यही उसका आधार तत्व है। भारतीय साहित्यकार डॉक्टर नागेंद्र जी ने भी तुलनात्मक साहित्य को परिभाषित किया है। डॉक्टर नागेंद्र जी तुलनात्मक साहित्य को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि तुलनात्मक साहित्य जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है कि साहित्य का तुलनात्मक साहित्य एक प्रकार का साहित्यिक अध्ययन है जो अनेक भाषाओं को आधार मानकर चलता है और जिसका उद्देश्य अनेकता में एकता का संधान करना होता है। डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन के अनुसार तुलनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किन्हीं दो समकालीन या विषमकालीन समान गुणात्मक प्रतीत होने वाले कृतियों का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन युगों, दो भाषाओं एवं दो व्यक्तियों का हो सकता है। यह अध्ययन गंभीर, वैज्ञानिक, तटस्थ और निष्कर्ष मूलक होना चाहिए। प्रस्तुत जो परिभाषा थी तुलना के व्यापक क्षेत्र को तथा स्वरूप का सूक्ष्मता से स्पष्ट करती है। इसमें तुलना के समान गुणों पर अधिक बल दिया जाता है। तुलना गंभीर, वैज्ञानिक, तटस्थ एवं निष्कर्ष मूलक जैसी महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी इंगित किया है। डॉक्टर सरगुण कृष्णमूर्ति तुलना के बारे में लिखते हैं कि तुलनात्मक अनुसंधान विभिन्न भाषा साहित्यों की कृतियों एवं स्थितियों का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करता है। विभिन्न भाषाओं एवं क्षेत्रों में ध्वनित मानों
जाति के हृदय एवं मस्तिष्क में परिलक्षित भाव साम्य का समुद्घाटन कर विश्व मानवता की एकता का निरूपण विश्लेषण करती है। कृष्णमूर्ति जी की परिभाषा तुलना के एक उद्देश्य को स्पष्ट करने वाली है। तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से विश्व मानवता की एकता स्पष्ट होती है और इस पर बल देती है। उसके बाद मैं प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान मैक्स मूलर जी जो बताते हैं तुलनात्मक साहित्य के बारे में, उनके वक्तव्य को रखती हूँ कि ऑल हायर नॉलेज इज गेनेड बाय कंपैरिजन एंड रेस्टेस ऑन कंप्रेसियन, अर्थात सभी उच्चतर ज्ञान की प्राप्ति तुलना से हुई है और वो तुलना पर आधारित होती है। इतना ही नहीं, तुलनात्मक साहित्य का रूप जो होता है वो बहुत ही व्यापक होता है। डॉक्टर पी आर डोडिया का मत है कि तुलनात्मक अध्ययन से विशेष लाभ यह होता है कि इसमें अनुसंधान की दृष्टि सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होकर अधिक गहराई में स्थित काव्य की अंतर आत्मा को स्पष्ट कर लेती है। परिणाम स्वरूप बहुत बहुमूल्य निष्कर्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान की परिपुष्टि एवं स्फूर्ति के लिए तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्य भी है। तुलनात्मक अध्ययन से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, इससे हमें उच्चतर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तुलनात्मक साहित्य की अवधारणा के अंतर्गत और भी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। तुलनात्मक विश्व साहित्य जो है, तुलनात्मक विश्व साहित्य वो साहित्यिक अनुशासन है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न देशों, भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों में रचित साहित्यिक कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य यह जानना होता है कि विभिन्न भाषाओं और सभ्यताओं में रचे गए साहित्यिक ग्रंथ किन बिंदुओं पर समानता और या भिन्नता रखते हैं और वे अपने अपने सामाजिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संदर्भों में किस प्रकार पाठकों को प्रभावित करते हैं। विश्व साहित्य की अवधारणा सर्वप्रथम जर्मन लेखक जोहान वोल्फगैंग गोएथे ने 19वीं शताब्दी में प्रस्तुत की थी। उनका मानना था कि साहित्य को केवल राष्ट्रीय सीमा में नहीं बांधा जाना चाहिए, बल्कि उसे वैश्विक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसी विचार ने तुलनात्मक विश्व साहित्य की नींव रखी, जो आज एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक अध्ययन पद्धति के रूप में स्थापित हो चुकी है। तुलनात्मक विश्व साहित्य का अध्ययन विभिन्न विधाओं जैसे कविता, उपन्यास, नाटक, लोक साहित्य, मिथक तथा समकालीन साहित्य आदि को केंद्र में रखकर किया जाता है। यह अध्ययन केवल रूपात्मक या विषयगत नहीं होता है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक अंतर संबंध, भाषाई आदान प्रदान, अनुवाद की भूमिका, औपनिवेशिक प्रभाव, स्त्रीवाद तथा उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण और आधुनिकता जैसी अवधारणाएं भी समाहित होती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक विश्व साहित्य का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ एक बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक समाज है। भारतीय साहित्य को विश्व साहित्य से जोड़कर एक वैश्विक संवाद की स्थापना की जा सकती है। साहित्य जो होता है वो मानव अनुभव की अभिव्यक्ति है और कवि उसकी आत्मा है। विश्व साहित्य में कुछ ऐसे कवि हुए हैं जिनकी लेखनी ने न केवल भाषा को संवारा, बल्कि युग की चेतना को भी दिशा दी। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि भवानी प्रसाद मिश्र और अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक कवि जॉन कीट्स दो विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के प्रतिनिधि है। फिर भी दोनों की कविताओं में मानवीय भावना, सौंदर्य की अनुभूति, जीवन की पीड़ा और प्रकृति के प्रति आकर्षण जैसी विशेषताएं समान रूप से दृष्टिगोचर होती है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि मैं आज आप लोग के समक्ष भवानी प्रसाद मिश्र और पाश्चात्य विचारक जॉन कीट्स जो है कवि, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन
आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र का कवि कर्म भारतीय जनमानस की पीड़ा, नैतिक मूल्यों और स्वतंत्रता के विचार से गहरे रूप में जुड़ा है। उनकी कविताएं सरल, सहज और गहरी होती है, जिनमें आम आदमी की आवाज मुखर होती है। वे भाषा के कृत्रिमता से दूर रहकर सहज सरल शैली को अपनाते हैं। उनकी कविता संग्रह बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश आदि विचारों तेजक है। दूसरी ओर जॉन कीट्स अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक युग के अंतिम किंतु सर्वाधिक प्रभावशाली कवियों में से एक थे। उनका लेखन सौंदर्य और संवेदना के अद्वितीय समन्वय का उदाहरण है। Ode to Nightingale, Ode on Grecian Urn to Autumn। इस तरह की कविताएं न केवल प्रकृति की सुंदरता को चित्रित करती है, बल्कि मृत्यु और अमरत्व जैसे दार्शनिक प्रश्नों को भी छूती है। इस तरह इन दोनों कवियों के भावबोध, विषय वस्तु, शैली और जीवन दृष्टि का तुलनात्मक व्याख्या करते हुए उनके काव्य में सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक संबंधों को उद्घाटित करने का मैं प्रयास की हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र और जॉन कीट्स दोनों ही अपने समय अपने अपने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अद्वितीय काव्य व्यक्तित्व है। मिश्र जहां भारतीय जनमानस की सौंधी मिट्टी से जुड़कर सामाजिक यथार्थ और नैतिक मूल्यों का चित्रण करते हैं, वही कीट्स अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक युग के प्रमुख कवि रहे हैं, जिनकी कविता सौंदर्य, प्रकृति और कल्पना के लिए प्रसिद्ध है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता आम आदमी की आवाज है। वे लिखते हैं, सच्ची कविता वही है जो हमें जगाए, जो हमारे अंदर के सोए को उठाए। उनकी कविता में स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार और भारतीय संस्कृति का स्वर स्पष्ट झलकता है। दूसरी ओर जॉन कीट्स की कविता सौंदर्य और शाश्वत की खोज है, कविता के प्रति उनके सौंदर्य बोध को दर्शाती है। कीट्स की कविताएं वस्तु जगत की सुंदरता, मृत्यु, प्रेम और समय की क्षणिकता को दर्शन कराती है। दोनों कवियों में प्रकृति के प्रति आकर्षण एवं सामान्य तत्व है, परंतु जहां कीट्स की प्रकृति में शाश्वत सौंदर्य को खोजते हैं, वही मिश्र उसमें जनजीवन की छवि देखते हैं। इस प्रकार मिश्र और कीट्स की कविताओं का तुलनात्मक दृष्टिपात कर सकते हैं। जीवन दृष्टि एवं काव्यगत दृष्टि से देखें तो भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य दृष्टि गांधीवादी विचारधारा, नैतिकता और भाषा की जन पक्षधरता से जुड़ी है। वे कविता को जन संवाद का माध्यम मानते हैं। उनकी यह पंक्तियां दृष्टव्य है, सत्य से मिलाया मैंने शब्द का संबंध और कविता को बनाया साधन मात्र छंद। जॉन कीट्स की कविता जीवन दृष्टि और क्षण भंगुरता और सौंदर्य के शाश्वत प्रभाव पर आधारित है। उनके अनुसार a thing of beauty is a joy forever। जहाँ मिश्र की कविता में सत्य के लिए संघर्ष है, वही कीट्स की कविता में सौंदर्य की शरण है। सौंदर्य बोध के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कीट्स का सौंदर्य बोध आदर्शवादी और कल्पनाशील है। Ode on a ग्रेसियन अर्न में वे लिखते हैं या कहते हैं कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल वी नो ऑन अर्थ एंड ऑल वी नीड टू नो। उसके लिए सौंदर्य ही अंतिम सत्य है। कीट्स के सौंदर्य में बिंबों, प्रतीकों, कलातीत कल्पनाओं की प्रमुख भूमिका है। वही भवानी प्रसाद मिश्र सौंदर्य की खोज को
साधारण जीवन की सहजता में पाते हैं। कविता बनती है मन की, कोई बात जो झड़ती है जैसे बारिश पेड़ पर चुपचाप। यह कविता और सौंदर्य दोनों जीवन की सरलता में समाहित है। दोनों कवियों में सौंदर्य की तलाश है, पर एक में कल्पना है और दूसरे में जीवन है। मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में भवानी प्रसाद मिश्र और जॉन कीट्स का वैचारिक कुछ रूपों में अलग परिलक्षित होता है। कीट्स की कविता में मृत्यु को एक सुकूनदायक रहस्यमयी तत्व है। ओड टू अ नाइटिंगेल में वे लिखते हैं, डार्कलिंग अर्ली सन and for many a time I have been half in love with a full death। किड्स मृत्यु को सौंदर्य और संगीत की अमरता के मुकाबले अल्पजीविता का अनुभव करते हैं। यह मृत्यु से मोह नहीं बल्कि शांति की तलाश है। वहीं पर भवानी प्रसाद मिश्र मृत्यु को सत्य की कसौटी मानते हैं। मरना कोई हर्ज नहीं है, बस यह तय रहे कि तुम्हारी आत्मा मरने से पहले सच के पक्ष में खड़ी रहे। यहाँ मृत्यु का उद्देश्य मूल आधारित जीवन की परिणति, प्रकृति का चित्रण दोनों ही कवियों की कविताओं में समान रूप से देखा जाता है, किंतु दोनों की चिंतन एक सा नहीं है। किड्स के लिए प्रकृति की प्रेरणा है। टू ऑटम में वे लिखते हैं, सीजन ऑफ मिड्स एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। किड्स प्रकृति, शांति, संगीत और अमरता के प्रतीक है। टू ऑटम कविता अब तक की सबसे प्रतिष्ठित पंक्तियों में से एक है। यकीनन कोई भी अन्य कवि इस मौसम का इतना सुंदर चित्रण इतनी कुशलता से या छवियों के इतने बहुरूप दर्शक भंडार के साथ नहीं कर पाया है। किड्स 3 महीनों में सिनेस्थीसिया को सिर्फ 3 छंदों में व्यक्त करने में सक्षम है। प्रकृतिवादी, देहाती भाषा कुछ जगहों पर हांडी की याद दिलाती है। हालांकि शब्दों में एक अंश से ही वो उतना ही हासिल कर लेती है। कवि लिखते हैं, सीजन ऑफ मिड्स एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज bosom friend of the maturing sun, for summer has overbrimmed their clammy cells। ठीक इसी तरह भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में प्रकृति जनजीवन से जुड़ी है। इनकी प्रकृति धूप, धूल, खेत, नदियों और गांव के अनुभवों से गुथी होती है। गीत फरोश में प्रकृति के कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं, नदी की तरह बहती है कविता, खेतों की तरह हरी होती है कविता। हर युग में सामाजिक चेतना का स्वरूप बदलता रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सामाजिक प्रतिरोध का स्वर है। यही नहीं, अपितु भवानी प्रसाद मिश्र की कविता स्वाधीनता आंदोलन और जन चेतना की वाहक है। परंतु किड्स की कविता व्यक्तिगत अनुभूति, सौंदर्य और कल्पना की ओर केंद्रित रहती है। वे सामाजिक आंदोलनों में सीधे भाग नहीं लेते। यही कारण है कि मिश्र अधिक सक्रिय सामाजिक चेतना वाले कवि के रूप में सामने आते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र और जॉन कीट्स की कविताओं में आत्मबोध और भावबोध का भी दर्शन होता है।
किड्स के लिए कविता एक निजी साधना है। अतः किड्स आत्मचिंतन में लिखते हैं कि when I have fears that I may says to be before my pen has gleaned my teeming brain। भवानी प्रसाद मिश्र और जॉन किट्स दोनों ही कवि यद्यपि विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि से आते हैं, किंतु उनकी कविताओं में आत्मबोध और भावबोध की सशक्त उपस्थिति देखी जा सकती है। दोनों कवियों ने व्यक्तित्व की आंतरिक अनुभूतियों को अत्यंत संवेदनशीलता और आत्मनिरीक्षण के साथ अभिव्यक्त किया है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में आत्मबोध एक सामाजिक और नैतिक संदर्भ के साथ उभरता है। वे आत्मा की सच्चाई को, जीवन के संघर्षों को और सामाजिक विषमताओं के बीच खोजते हैं। मिश्र की कविताएं भारतीय एथोस से गहराई से जुड़ी होती है, जिसमें व्यक्ति अपने स्व को दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व के माध्यम से पहचानता है। वही जॉन किट्स एक अंग्रेजी रोमांटिक कवि आत्मबोधक और को अधिक सौंदर्यानुभूति और गहन भाव जगत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। उनकी कविता ओड टू नाइटिंगेल में वे यथार्थ से पलायन नहीं करते, बल्कि सौंदर्य और मृत्यु के दर्शन के माध्यम से आत्मबोध प्राप्त करते हैं। दोनों कवियों में भावबोध में भी अंतर स्पष्ट है। जहाँ मिश्र की कविताएं जनजीवन, ग्राम्य संस्कृति और असत्य से जुड़ी है, वही किट्स की रचनाएं सौंदर्य, कल्पना और शाश्वत की अनुभूति से ओतप्रोत है। लेकिन दोनों की कविताओं में एक समानता यह है कि वे अपने अंदर की यात्रा करते हैं, एक चेतना के आलोक में, जिसमें व्यक्ति स्वयं को, अपने परिवेश को नए दृष्टिकोण से देखता है। भाषा शैली के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ज्ञात होता है कि भवानी प्रसाद मिश्र और जॉन किट्स दोनों भाषाओं और संस्कृतियों के कवि होने के बावजूद अपनी काव्य भाषा और शैली में कई ऐसी विशेषता रखते हैं जो उन्हें एक तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त बनाती है। मिश्र हिंदी कविता के प्रतिनिधि कवि है, जो भारतीय जीवन, समाज और संस्कृति से गहराई से जुड़े हुए हैं, जबकि किट्स अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक युग के कवि है, जिनकी कविता सौंदर्य, प्रकृति और कल्पना की पराकाष्ठा है। दोनों कवियों की भाषा शैली में वैचारिक गंभीरता, सौंदर्य बोध और मानवीय संवेदनाएं विद्यमान है, किंतु अभिव्यक्ति के तरीके और भाषिक बनावट में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा शैली अत्यंत सहज, सरल, देशज और बोलचाल की है। उनकी कविता में जनजीवन की गंध है। वे क्लिष्टता से दूर रहते हैं और अपनी बात सीधे सपाट शब्दों में कह देते हैं। उनके यहाँ सादगी में संप्रेषण की शक्ति है। मिश्र जी की भाषा खड़ी बोली के साथ साथ बुंदेली, देशज शब्दों और मुहावरों का प्रयोग मिलता है, जो उन्हें आम जन से जोड़ता है। उनकी शैली में आत्मीयता, विचारधारा की स्पष्टता और लोक की संवेदना है। वहीं दूसरी ओर जॉन किट्स की भाषा शैली अत्यंत कलात्मक, अलंकारिक और सौंदर्य प्रधान है। वे रोमांटिक युग के उस धारा से जुड़े हैं जो भाषा, भाव की अतिशयता और कल्पनाओं की उड़ान का माध्यम बनती है। उनकी प्रसिद्ध कविता ओड टू अ नाइटिंगेल में वे लिखते हैं, दो वेस्ट नो बर्ड फॉर डेथ, इमोर्टल बर्ड। यहाँ प्रतीकात्मक कल्पना और भाषा की
लत्यात्मकता स्पष्ट दिखती है। किड्स की शैली चित्रात्मक है, जो पाठक को एक दृश्यात्मक अनुभव कराती है। उनकी भाषा में गहराई, माधुर्य और काव्यात्मकता का अद्भुत संतुलन है। वे ग्रीक मिथ को प्रकृति और सौंदर्य और कालजयी तत्वों का प्रयोग करते हुए एक जादुई वातावरण रचते हैं। जहाँ एक तरफ मिश्र जी यथार्थ के धरातल पर खड़े कवि है, वही किड्स सौंदर्य और कल्पना के क्षितिज पर विचरण करते हैं। मिस्र की भाषा सामाजिक परिवर्तन और आत्म संवाद की प्रेरणा देती है, जबकि किड्स की भाषा सौंदर्य की शाश्वत खोज में संलग्न है। मिस्र की शैली में व्यंग, आलोचना और प्रतिरोध का स्वर है, जबकि किड्स की शैली में संगीतात्मकता, भाव प्रवणता और बिंबात्मकता प्रमुख है। अब मैं आप लोग के समक्ष और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखूंगी। जैसा कि मैंने सबसे पहले तुलनात्मक साहित्य की अवधारणा के बारे में चर्चा की कि किन किन विचारकों ने क्या क्या तुलनात्मक साहित्य के बारे में कहा। अब निष्कर्ष रूप में मैं यह बताऊंगी कि तुलनात्मक साहित्य क्या है और भवानी प्रसाद मिश्र और जॉन किट्स की तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। तुलनात्मक साहित्य जो है, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक साहित्य जो है आज के 21वीं सदी में भूमंडलीकरण के बाजारवाद के कारण संपूर्ण विश्व एक विश्वग्राम के रूप में बन गया है। ऐसे में तुलनात्मक साहित्य को अनेक कारणों से अनन्य साधारण महत्व प्राप्त हुआ है और तुलनात्मक साहित्य जो है वो हमें एक साथ लाने का काम करता है। यहाँ तक कि तुलनात्मक साहित्य जो है वो खुद में दूसरे को जांचने का परख देता है। तुलनात्मक साहित्य जो है वो हमें व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करता है। तुलनात्मक साहित्य हमारे संकीर्ण विचारों को विस्तार पूर्वक दृष्टिकोण प्रदान करता है। और एक बात मैं आप लोग के समक्ष रखना चाहूंगी कि तुलनात्मक साहित्य जो होता है उसमें अनुवाद की भी बहुत भूमिका होती है। बिना अनुवाद का तुलनात्मक साहित्य नहीं किया जा सकता है। तुलनात्मक साहित्य जो है वो तुलनात्मक साहित्य जो है वो दूसरे में खुद को जांचने का माध्यम है। अर्थात कहने का मतलब कि अगर हमको खुद में दूसरों को जांचना है तो हमें तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन करना ही पड़ेगा। तुलनात्मक साहित्य के बारे में जैसा कि मैक्स मुलर कहे हैं कि अगर हमें उच्चतर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो तुलनात्मक साहित्य को समझना पड़ेगा। आज पाश्चात्य सभ्यता, बाजारवाद, स्वार्थपरता और भोगवादिता की प्रवृत्ति भारत में प्रबल होती जा रही है, जिसमें व्यक्तिवाद बढ़ा है, संयुक्त परिवार टूटे हैं, मानव आदर भाव भी कम हुआ है, मानव मूल्य, नैतिक मूल्य और जीवन मूल्य पर्याप्त गति से संक्रमणित तथा परिवर्तित हुए हैं। तुलनात्मक अध्ययन जो है उसके द्वारा अनेक समानता परक तथ्यों एवं सत्यों की स्थापना करके भारतीय संस्कृति की मूलभूत एकता की भावना को फिर से चरितार्थ किया जा सकता है। अर्थात कहने का अभिप्राय कि अगर हमें भारतीय संस्कृति की मूलभूत एकता को चरितार्थ करना है तो तुलनात्मक साहित्य जरूरी है। हिंदी एवं अन्य प्रादेशिक भाषाओं और साहित्यों में तुलनात्मक अनुसंधान से आदान प्रदान की भावना बढ़ेगी। दोनों भाषाएं आपसी आदान प्रदान से संपन्न एवं समृद्ध बनेगी। हिंदी को राज्य भाषा के साथ साथ संपर्क भाषा और विश्व भाषा के विराट तथा महान उत्तरदायित्व को निभाना है। इसके लिए हिंदी को अपने प्रादेशिक स्वरूप से राष्ट्रीय स्वरूप में विकसित होना है। यह महान कार्य जो है वो तुलनात्मक अध्ययन से ही संभव होना है।
अर्थात तुलनात्मक साहित्य से ही हिंदी को एक व्यापक और विकसित रूप मिल सकता है। अब मैं आप लोग के समक्ष निष्कर्ष रूप में यह रखना चाहती हूँ कि भवानी प्रसाद मिश्र और जॉन कीट्स दोनों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो क्या समानता पाते हैं और क्या असमानता पाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र और जॉन कीट्स यद्यपि भिन्न भौगोलिक और सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से संबंध रखते हैं, फिर भी उनकी कविताओं में मानवीय संवेदना, सौंदर्य बोध और जीवन के प्रति गहन दृष्टिकोण समान रूप से परिलक्षित होते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं, जिन्होंने कविता को जन जीवन से जोड़ा। उनकी कविता में देशज, भाषा, व्यंग, सामाजिक सरोकार और यथार्थ का अद्भुत समन्वय है। वे परंपरा में आधुनिकता का समावेश करते हैं। वे कवि कम और जन कवि अधिक है। अर्थात कहने का मतलब कि वो जन जन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए कवि कम है और जन कवि ज्यादा है। उनकी कविता में विचार की प्रखरता, संवेदना की गहराई और प्रतिरोध का साहस एक साथ उपस्थित होता है। मिश्र की भाषा सादा किंतु प्रभावशाली है, जो सीधे पाठक के हृदय में प्रवेश करती है, जबकि जॉन कीट्स रोमांटिक युग के ऐसे कवि हैं जो सौंदर्य के उपासक माने जाते हैं। उन्होंने कविता को एक सौंदर्यात्मक अनुभव का माध्यम बनाया। उनकी कविताओं में प्रकृति, प्रेम, मृत्यु और अमरता जैसे विषयों की गहन और कल्पनात्मक प्रस्तुति है। कीट्स की भाषा अत्यंत अलंकारिक, संगीतात्मक और बिंबात्मक है। वे सौंदर्य और कल्पना की उच्चतम सीमाओं तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जहां मिश्र की कविता सामाजिक यथार्थ से जुड़ी हुई है, वहीं कीट्स की कविता सौंदर्य और कल्पना की उड़ान है। मिश्र की कविता पाठक को सोचने, जागने और बदलाव की प्रेरणा देने वाली है, जबकि कीट्स की कविता पाठक को भावनाओं की गहराई और सौंदर्य के अद्वितीय संसार में ले जाती है। मिश्र संघर्ष और जीवन के यथार्थ को सामने लाते हैं, वही कीट्स जीवन की पीड़ा को सौंदर्य में रूपांतरित कर देते हैं। अतः इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दोनों कवियों की कविताएं अपने अपने सांस्कृतिक और दार्शनिक संदर्भों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य में सामाजिक चेतना और प्रतिरोध के स्वर के वाहक है, जबकि जॉन कीट्स अंग्रेजी साहित्य में सौंदर्य और कल्पना की पराकाष्ठा का प्रतीक है। दोनों की कविताएं मानवीय अनुभूति और सौंदर्य और विचार की व्यापकता को समेटे हुए हैं। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भवानी प्रसाद मिश्र और जॉन कीट्स दोनों ही कवियों ने अपनी काव्य यात्रा में अपने युग, समाज और संवेदना के अनुरूप साहित्य को समृद्ध किया। एक और जहां मिश्र की कविता को समाज परिवर्तन का माध्यम बनाते हैं, वहीं कीट्स कविता को आत्मानंद और सौंदर्य के साक्षात्कार का साधन बनाते हैं। दोनों की कविताएं पाठकों को न केवल भावनात्मक रूप से स्पर्श करती है, बल्कि चिंतन की दिशा भी प्रदान करती है। यही विशेषता इन्हें कालजयी बनाती है, और ये सब संभव हुआ है इन दोनों साहित्यकारों की कविताओं की तुलनात्मक साहित्य के द्वारा ही हो सकता है। तुलनात्मक विश्व साहित्य को ध्यान में रखकर ही इन दोनों की तुलना की गई है। अब मैं आप लोग के सामने धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी।
मैं डॉक्टर रेखा कुमारी त्रिपाठी तुलनात्मक विश्व साहित्य के आभासी संगोष्ठी में आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। उसके पहले एक त्रुटि रह गई है कि आप में से कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न करना है तो आप कर सकते हैं। जो दर्शकगण और श्रोतागण जुड़े हैं, अगर उनको कोई प्रश्न करना है तो आप में से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं धन्यवाद ज्ञापन की तरफ चलती हूँ। मैं डॉक्टर रेखा कुमारी त्रिपाठी तुलनात्मक विश्व साहित्य के आभासी संगोष्ठी में आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर अपना विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। आज का दिन मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व है, क्योंकि ऐसे विद्वत जन के बीच मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं हिंदी विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर नंदिनी साहू मैम को आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से विश्वविद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन संभव हो सका है। आपकी प्रतिबद्धता और कार्यकुशलता ने से न केवल विश्वविद्यालय का मान बढ़ा है, बल्कि विद्यार्थियों और शैक्षिक जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुके हैं। मुझे विश्वास है, अर्थात मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपके प्रतिनिधित्व में विश्वविद्यालय सर्वांगीण विकास का परिचायक बनेगा। तत्पश्चात मैं इस कार्यक्रम की समन्वयक पारोमिता दास जी को भी सादर आभार प्रकट करती हूँ, जिनके अथक परिश्रम एवं संयोजन में एक वैश्विक स्तर पर साहित्य को जानने समझने का सुअवसर प्राप्त हुआ। साथ ही विश्वविद्यालय के सभी संकायों के समस्त प्राध्यापक एवं प्राध्यापिकाओं, विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और जो टेक्निकल रूप में मेरी सहायता कर रहे हैं, उन सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनका सौहार्द प्रिय सुझाव और सहयोग के फलस्वरूप यह आयोजन सफल हुआ। अंततः मैं विश्वविद्यालय के उन तमाम विद्यार्थियों के साथ साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल दर्शकों को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर हमें प्रोत्साहित किया। आपकी भागीदारी ने इस आयोजन को और भी सार्थक बना दिया। विद्यार्थियों का उत्साह और उत्सुकता इस बात का संकेत है कि हमारी शैक्षिक यात्रा में न केवल हम बल्कि आप सभी की सहभागी है और हमारे विचारों का विस्तार कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी को मैं सादर धन्यवाद देती हूँ।